India to reconsider and withdraw the following three ordinances and propose Electricity Amendment Bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments in the House were conveyed to the Prime Minister through three letters which I addressed to the Prime Minister, पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून के विच कि साडे व्यूज ने ये नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो जुलाई हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसिया और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुम नहीं कर रहे कि जनाब बड़ा हालात अच्छे नहीं होते जाते और इस देश के विच through letter number so and so, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab, I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने तीन बिल बनाए. These three legislations, along with proposed Electricity Amendment Bill 220, are clearly against the interests of the farmers and landless workers. And time-tested agricultural market system established not only in Punjab but also in the original Green Revolution areas of Punjab, Haryana and Western UP. Clearly, the Government of India has enacted legislations and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India in 14, this 2, which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to improve upon the functions and the powers of the state inside the country's constitution. In the associate background, the Assembly sustained to unanimously reject these three legislations and the proposed Electricity Amendment 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. A massive resolution for discussion at any time. आपने हम क्या कि मैं बिल पेश करा मैं इन्हों पेश कराता मैं ओके सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लै के अपनाए कठोर ते बेतरक वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां अते प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 नूं मुड़ विचार के तुरंत वापस लवे। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 भावें कि पंजाब विधान सभा के सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख्यमंत्री पंजाब वालों उन्हां दे पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जाणू कराया गया सी। फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूनां विच तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 24 सितंबर 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 24 सितंबर 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 समेत ये तिन्ने कानून
साफ तौर पर किसानां, बेजमीना, कामियां, देशदां ਅਤੇ ना केवल पंजाब बल्कि मुढ़ली हरी क्रांति के पंजाब, हरियाणा ਅਤੇ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खित्तियां विच चिरां तो स्थापित खेतीबाड़ी मंडीकरण प्रणाली के भी विरुद्ध हैं। प्रत्यक्ष तौर ते भारत सरकार ने वपारक कानून घड़े हैं, ना कि खेती नाल संबंधित कानून। ये भारत के संविधान एंट्री 14 लिस्ट 2 जिस अनुसार खेतीबाड़ी राज का एक विषय है, ये भी खिलाफ हैं। ये कानून देश के संविधान में दर्ज राज के कार्यां ਅਤੇ शक्तियां ते एक सीधा हमला है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। सीएम साहब। स्पीकर साहब, मैं आपको मेरी करता है कि पहला था Foreign Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. दूजा Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Policies Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. और तीसरा Essential Commodity Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. तो मैं आपको ये बेनती करना है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। एक जी जी वो एजेंडे दे विच ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। just 1 minute back. The Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Special Provision and Punjab Amendment Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020, and the Essential Commodities Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭੀ ਸੇ। Speaker Sir, I present the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਐਕਟ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। सीएम साहब। है जी बिल्कुल 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 तुसी अपनी लिस्ट भेजो जी थोड़ी लिस्ट आई है वैसे ही हो जाना बोलने बुलाने मैं होर ज्यादा कर अद्धे तो ज्यादा कर देने अद्धे तो ज्यादा कर देने तो बारे ज्यादा बुला देने पहला कोई गल
कोई तो ही नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब इस तरह करो, ट्रेजरी बेंचेस को ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਹਾਊਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। सीएम साहब बैठो बैठो बैठो, सीएम साहब बोल रहे हैं, सुनो। बैठो प्लीज बैठो, चीमा साहब प्लीज बैठो, चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है, प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब। स्पीकर साहब कदों तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिसके साथ ये डिस्कशन चल रही है। नहीं बिल बने स्टार्ट विद शांतक पहला था साड़ी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शानदार कमेटी रिपोर्ट भी बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा था, ये शानदार कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 ये फाइनल रिपोर्ट इन्होंने आई थी। एंड समिंग अप इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जोड़े अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली गल कर रहे हैं कि वो भी ना होनी चाहिए। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड नॉट ओनली कंटिन्यू बट शुड बी लिस्टेड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स। और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की गल। फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे, जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये असं लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांतक कमेटी शांतक कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने दिन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। इन्होंने आ रिपोर्ट है शांतक कुमार की, एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दिया, इसका बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, जिहड़ा देश को बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जेरे सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान में। उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें साडे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साडे स्टेटां नूं कई अधिकार से कि तुसीं अपने आप कानून बेस पे बनाओ, एक करके दूजा करके तीजा करके खत्म कर दें। GST की गल देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू है? 9,500 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुसीं पावर साथ तो लेना, फिर तुसीं उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करते। दिस इज वन, ये तो एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एंट्री 14 दे विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 इन्होंने इग्नोर करता, विच इज क्लीयरली
एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सेट्रा इज नॉट। और 28 ने मार्केटां नूं रखना है वो भी रद्द करता। इन्हां ने आर्टिकल सैक्शन 33 दे विच ले लिया। 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड। ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो, तुम मंडियां मुंडियां के बाहर के पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो, लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जोड़ा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल त्यार हारवेस्ट करता है उन्होंने वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच वे कि तुम कन्विंस अपने आप को कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं आके उसे मटर बीजना है और मटर से मैं बीजना है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. तो एक ट्रेड नो अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव brought it, मैं कहीं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जब लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई, why didn't you बहस क्यों नहीं करो? बहस कराओ दे और 10 दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया, बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ठीक है कि ओके लोकसभा के बहस नहीं कराओ, विधानसभा नहीं कराओ, ना कानून पास कर करो, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून को बहस नहीं कराओ? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज और मैंने ये समझ आती इन्हों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्ते बैठा सी ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माइनर थिंग्स। आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया। नंबर 1 सैकेंडली तुसी ये नहीं सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों पीएम फॉरेन लग्या सी उरे आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोल नाल झोली अड्ड के असी जाके अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते, उदों तुसीं अमेरिका नाल पीएम फॉरेन की 10 मिलियन टन तुसीं इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इत्थे कोई काल ना आ जाए, लोग भुखे ना मरन लग जाए देश च। फिर पहुंचे निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट साडे लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवीं कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, फिर तुसीं चौल अपने फिलीपीनस ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, और 4 सालों के 66 तो लैके 10 सालों के अन्न बाहरों मंगाउण की लोड़ नहीं पई। साडे पंजाब ने हिंदुस्तान लोग भुखे मरन तो असीं 70 साल साडा काम चलता रहा, नवीं फसल आईयां, मेहनत की, कणक की धुप के कम कणक की, मर ठंड उत्थे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे, उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया। भुल गए तुसीं? इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने सब भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुमता क्यों करती है इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो, पंजाब को। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वरते हो इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर पर बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज
पिंडों तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं की सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जीएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जीएंगे, की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उधर भी मैंने पता सी मुश्किल साह होता सी। 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर, सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन तुसीं नाम ले लो, जिथे रोज ही साढ़े कोई दिन ना जिथे साढ़े कोई जवान नहीं इतने शहीद होंगे, सब पिंडों तो आते ने, सारे खेतीबाड़ी के निर्भर ने। वो की सोच है, बोल नहीं सकते क्योंकि फौजी बोलता नहीं, दिल के विच तो सट वरती है ना कि मेरे परिवार के नाल की हो रहा। सो तुसीं पंजाब दे इत्थे रोज हर दूजे दिन मेरा कोई पंजाबी इत्थे शहीद होंदा है उत्थे बॉर्डर और 1.5% 57% लोग ने पंजाब जो 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 इत्थे देश को रक्षा करते, देश को आने देते और देश को बचाने ने जब संकट आते। तुसीं ये भी भुल जाते हो सारिया गल्लां। तो मैं ये समझना चाहता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई एम वेरी अनईजी, आई एम वेरी अपसेट। देखो गल ये कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो अज साडा एक तो कोविड का काल है, दूजे पासे साड़ी अज अखबार के पिछले अखबार कि इंडस्ट्री की रनिंग 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पिया इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जो फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करना पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करना पूरा अधिकार है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के विच एजुकेट करना ठीक है। असी किसानों नाल खड़े हैं। मैं हुण किसानों को जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने, हुण समय आ गया कि तुसीं असीं तुहाडे नाल तुसीं साडे नाल खड़ो। देखो दो गल्लां हो सकदियां ने, इकोनॉमी नूं करना पंजाब नहीं बच सकता नहीं। अगर असीं समझते हैं कि सिर्फ आपां एक टोल प्लाजा रोक जो सारा रोक दो कोई ये कुछ फर्क पैदा, ये कुछ फर्क नहीं पैदा। फर्क पैदा है देखो तुसीं कोई बिजली देख लो, अगर अज मेरे को नाभा पावर जोड़ा है वो को मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक है, कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साढ़े को 20-10 खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया, सिर्फ लहरा रोपड़ सारे कुछ बोला है कितों खरीदा है पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदे, पैसा कितने है थोड़े को खरीदन, साढ़े को पैसा नहीं है, वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को? वी हैव टू इफ वी हैव टू बाय वी कांट बाय। आज कोड़ा खरीद के रख ले क्यों नहीं रखा? क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोड़ा सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया, 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता है दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दम तक खड़ के पूरा मैनूं पता अज कोई बोल नहीं रहा है, पर जब बोलणगे सारे किसानों के नाल हमदर्दी है साउथ और असीं तुहाडे नाल अकेले दम तक खड़ांगे। लेकिन हुण थोड़ा काम है साडे नाल करना, मैं सरकार चलाउणी है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसे देने, मेरी डेवलपमेंट ने इत्थे सारे मिनिस्टर बैठे ने, उन्होंने पैसा की लोड़ करने वास्ते। तो इस करके हुण आपां नूं अपना रेगोक वगैरह बंद करो, आपां नूं पंजाब चलाइए आपां और इत्थे अपने जिहड़े कुछ इंडस्ट्री नूं चलाइए। थोड़े कोल हुण सिर्फ 10% यूरिया जिहड़ा कणक की बजाय हो रही है, 10% थोड़े कोल यूरिया, थोड़े कोल जी अज सारे स्टॉक्स भरे पे ने साडे गोडाउन के जाता ही निकलते नहीं, मैं नवी झोना कितने रखना। फिर थोड़े कोल जेडे तुसीं फर्टिलाइजर बाहर होने उन्होंने आना उत्थों। तो ये सारिया चीज़ां हुण लिंक ने पंजाब की इकोनॉमी नाल। पता 40,000 करोड़ का साडा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में।
वी कैनॉट अफोर्ड दिस। ये पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहना, मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह रहे हैं कि तुसी ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी दे विच पंजाब देखिया। मैं देखिया जो 35,000 पंजाबी इत्थे उन्हें डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि ये काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानदा आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ, मैनू पता है कि कुछ हो हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व थे उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलदा ते ये मूवमेंट बढ़ेगी, कदेगी नहीं। यही होया सी 1984 यही होया सी 90 दे विच, किन्ने बंदे शहीद कीते ने। आपां चाहुंदे कि इत्थे आबहवा खराब हो सकदा है, कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने इत्थे साडी इकोनॉमी किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ियाँ देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे, उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने हो दस नहीं कर, चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कार्यक्रम हाईवे आ रही है, एक टनल सो में बढ़ाई और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। डू वी वांट दैट? डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आते सकावांगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं, अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं, बाकी बढ़िया की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये साडा कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए, फिर दसो पंजाब का कहना देश का कहना तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को बड़े रोल है, एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल नूं नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए अपन गल करते बहुत जेडे जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बड़ी फुर्ती नाल अपना अपने आंकड़े कटे ने हाल तक टाइम लगेगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो रहा है साडे पंजाब के किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 ਤੋਂ लेकर 5 तक उसका नुकसान है और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, तो कैसे चलेगा साਡਾ पंजाब। तो इन्होंने कहता कि असं है कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवांगे। तीसरी गल फर्टिलाइजर, हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने कहा है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान हर फसल वास्ते 2,500 रुपया 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जिन्ना फर्टिलाइजर सन चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंट की पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक है और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है
आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी को 21,000 करोड़ 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और विचों पंजाब की 5,000 करोड़ पंजाब की एंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आईया नहीं गल्लां पर आउणियां पर ये साडा काम इस कदम दा है ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपने किसानी नाल खड़ना पाओ खड़े पता है ये हौसली पर आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट सेंटर ने बंद करी ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ लेकिन हसी वी विल फाइट दिस इस बैटल में ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ हर अदालत के लिए एक गल आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साउथ में मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए साल हो गए जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोक सभा मैं समझना दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारा किसी देश की बिगड़ सकती है किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम दत्त मारो अज पेट से पाई जा रही है मैं उदों इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार में ऐसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते हैं मैनू कट दें मैनू बदमाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर जाएंगे लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल जिस तरीके मित्रे इन्होंने किए ने जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुका सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मानयोग स्पीकर साहब मैं सीएम साहब को बधाई देना चाहना रात दिन स्पीकर साहब 17 नहीं करता अज के विधान सभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय इस काले कानूनों की काली रात के सितारे वांग चमक रहा है और सचमुच सचमुच अज संविधान सभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मूँह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है पूरे हिंदुस्तान के गई है कि तुम मेहनत का शुभ वक्त के सदिया ऐसा फरामोश